Welcome back. The Madhya Pradesh High Court on Monday gave permission for an ASI survey of the Temple Kamal Molla Mosque complex in Dhar. Now, Hindus consider the Bodhshala a temple of goddess Vagdevi, while Muslims treat it as a mosque. The court has directed that a 5-member committee of ASI members headed by the director or additional director of the ASI should be formed, and a report needs to be submitted within 6 weeks. Now, tensions have prevailed in Dhar several times over this issue, especially when Basant Panchami falls on a Friday, as Muslims and Hindus both queue up to offer prayers. In September last year, security had to be beefed up in the area after an idol of Vagdevi was placed inside the ancient building. Now, Bodhshala is one of many such disputes that have been ongoing over religious places. After the resolution in Ayodhya, clearly it's not just Kashi and Mathura, but even other places that have come under the scanner. Will it stop at 3 temple reclamations or 3,000 is another question on everyone's mind. Well, only time will tell, but take a look at this special report from one of the primary dispute sites, being in Mathura. What do people there feel about such cases? Even as the euphoria around the Ram Temple Pran Pratishtha in Ayodhya was at its peak, cases of the other two big temple reclamations in India, Mathura and Kashi, have also been picking up pace, at least in courts. Now, it may seem that this is happening because of the Ayodhya effect, or even perhaps because of the impending general elections. The reality, though, also is that a lot of these cases have been pending in courts for a very long time, some of these petitions pending for many decades. Now, in Mathura most recently, Allahabad High Court ordered a survey of the Eidgah site quite on the lines of the Gyanvapi Mosque in Kashi, only for the Supreme Court to, at least for now, stay that order. But that hasn't stopped politicians or saints from bringing the focus back to the pending dispute of Kashi and Mathura. एक बात तो मैं स्वयं समझता हूं कि पहले से ही यह प्रार्थना सब लोगों से की जाती रही है कि केवल इन 3 मंदिरों को हम लोग पूर्ण तरह से विमुक्त कर सके, इतनी हमारी आकांक्षा है। तो इसलिए इन मंदिरों का भी कभी न कभी मुक्त होना स्वाभाविक लगता है, और मुझे ऐसा लगता है कि न्याय की प्रक्रिया से यह काम निश्चित रूप से आसान होगा। Out of the 3, the Mathura case is possibly the most complex, because in this case exists a 1968 agreement between the Janamsthan Seva Sangh and the Shahi Eidgah, which divided the current land into its present form. Now, that agreement is challenged by the Krishna Janmabhoomi Trust on the grounds that the erstwhile Seva Sangh, which is today the Sansthan, had no powers or locus standi to enter into this agreement and divide the land. जिनने किया न तो ट्रस्ट ने उनको ऑथराइज किया, मतलब ऑनरशिप ट्रस्ट पे होती है, एक बॉडी होती है। बड़े ट्रस्ट जो है वो अपना जो है रूटीन वर्क को देखने के लिए एक मैनेजिंग कमेटी और लोकल बना देते हैं और उसका रिन्यूअल करते रहते हैं हर 2 साल बाद। लेकिन वो जो है डे टू डे रूटीन वर्क है, उनको करने के लिए उनको ऑथराइज करते हैं। ऑनरशिप जो है कभी भी ट्रस्ट से ट्रांसफर नहीं होती। इवन जो किसी भी ट्रस्ट जब बनाया गया तो उसमें तो ये पहला क्लॉज था, फंडामेंटल क्लॉज जो था उसका, कि वो ट्रस्ट भी इसको ट्रांसफर नहीं कर सकता है। जी जी नहीं, पर आपको नहीं लगता, कुछ लोग कहते हैं कि बहुत समय निकल गया और अब 2023 में ये केस दोबारा से उठाया गया। ठाकुर जी की संपत्ति नाबालिग संपत्ति होती है, माइनर संपत्ति बोली जाती है, और हम ये कहते हैं कि जब जो है जिसको आप कहते हैं उन्होंने नहीं किया, उनको ही अब राइट नहीं है ट्रांसफर करने का, तो किसने किया उसका वो असर ही कोई नहीं है उसका। तो ट्रस्ट ने बहुत देरी नहीं कर दी इसको? नहीं, जब मैं कहता हूँ जब ट्रस्टों को असर ही नहीं है, मैं आपसे बार बार कहूंगा कोई सामने बात करे, चाहे वो खसरा हो, चाहे खेवट हो, चाहे खतौनी हो, चाहे म्युनिसिपल रिकॉर्ड हो, इवन ईदगाह समेत जो परसर जिन पे अवैध कब्जा है उसका टैक्स भी जनरल ट्रस्ट दे रहा है। भले ही वो रह रहे हैं, लेकिन मालकियत के खाने में आज भी नाम कृष्ण हुए ट्रस्ट गई है। तो यदि उन पर कोई राइट होता तो अब तक वो 60 साल तक चुप बैठे रहते क्या? देखिए, इशू ये था जब धर्म संसद हुई विज्ञान भवन दिल्ली में 84 में, विष्णु ने पहली धर्म संसद बुलाई, तो ये था कि लगभग 30,000 स्थान ऐसे हैं जहाँ पहले मंदिर थे, आज भी मस्जिद खड़ी हुई है। 3,000 स्थान ऐसे तीर्थों पे जहाँ जो पहले मंदिर थे, तो हम ना 30,000 की बात कर रहे हैं,
न हम तीन यार की बात करें, अयोध्या, मथुरा, काशी, राम कृष्ण शिव, इनको हटा दें तो हिंदू समाज पर कोई बचता ही नहीं है। ये मंदिर का विषय नहीं है, ये कृष्ण जन्मभूमि है, वह राम जन्मभूमि थी। ये मंदिर, भव्य स्मारक इसका विषय नहीं है, ये है भूमि, और भूमि परिवर्तन नहीं हो सकती। ये आइडेंटिटी है, ये अस्मिता है हिंदू समाज की, उससे कभी कोई नकार, और किसी को राइट भी नहीं नकारने का। जी। अच्छा हो समय का ये बहुत बड़ा संकेत है अयोध्या। अच्छा ये हो कि वो जो है स्वार्थ का परिचय दे और अवैध कब्जा ना हटा ले, तो उनको धन्यवाद भी दिया जाएगा। और अब अयोध्या में दूसरी मस्जिद में मना कर रहा है क्या? Let's try and talk to people in the twin cities of Mathura and Vrindavan. What do they think about the movements that are once again gaining pace? I'm at one very popular eatery shop. ये अयोध्या के बाद अब काशी और मथुरा के कोर्ट केसेस भी चल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इन केसेस में भी कुछ समाधान हो पाएगा? होना चाहिए, जब मोदी है होना चाहिए। अच्छा, होगा। कुछ लोग कहते हैं कि अब अयोध्या हो गया है, अब काशी मथुरा की बात करने की क्या जरूरत है? तो देखिए, हिस्ट्री में जो हुआ है उसको करेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है। हिस्ट्री छुपाई नहीं जा सकती, जितना दबाया जाए उतना ही वो उभर के आएगी। तो आपको लगता है कि कोर्ट से ही होगा इसका समाधान, या कुछ आपस में भी सहमति हो सकती है? देखिए, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कोर्ट ही फैसला लेगा, गवर्नमेंट फैसला नहीं लेगी, कोर्ट के थ्रू ही होगा जो भी होगा। तो इलेक्शन में ये मुद्दा है, आपको लगता है होना चाहिए? देखिए, इलेक्शन में ये मुद्दा किसी काम का नहीं रहेगा। आज की डेट के अंदर हर इंसान को एक ईमानदार सरकार चाहिए। अगर जो ईमानदार होगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से रहेगा, वो जीतेगा। योगी और मोदी जी की श्रद्धा और भक्ति रंग तो जरूर लाएगी। अच्छा। आज नहीं तो कल लाएगी। आपको यकीन है? बिल्कुल यकीन है। ऐसा कभी भी श्रद्धा और भक्ति कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि रंग ना लाए। आप अगर इतिहास खोल के देखें तो जब भारत आज़ाद हुआ है तो भारत की आज़ादी में मुस्लिम लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो लोग भी क्रांतिकारी रहे हैं, फांसी पे वो लोग भी झूले हैं। तो इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आप मुस्लिम विशेष से है क्या इस चीज़ को जोड़ रहे हो। मुस्लिमों की जगह जो मुस्लिमों को दी जाए, हिंदुओं की जगह वो हिंदुओं को दी जाए। आपका एक सवाल था कि सरकार पे विश्वास है या कोर्ट पे। सरकार पे, कोर्ट पे विश्वास है, बट उससे ज्यादा विश्वास सरकार पे है। सरकारें आई है गई है, बट आज तक किसी में दम नहीं हुआ ये मुद्दा उठाने का। हाँ, तो यही बात हो रही है। अब जैसे अयोध्या में भी एक्सकवेशन हुआ था, अब मथुरा में भी, काशी में भी उसकी बात हो रही है, सर्वे की बात हो रही है। आपको लगता है सच्चाई उसी से सामने आएगी? जी जी, सर्वे होना चाहिए। ऐसे तो कोई भी कुछ भी बोल देगा हमारा है हमारा है, जब तक प्रूफ नहीं आएगा तब तक तो कैसे पता लगेगा ना। सर्वे की बात करेंगे तो कोर्ट पे पूरा विश्वास है, जो उनका फैसला होगा वो बिल्कुल तहे दिल से हम स्वीकार करेंगे, चाहे वो किसी के भी पक्ष में हो। श्री कृष्ण जय श्री राम। There is no denying that the sentiment of the public is associated with this issue, which also has its own intrinsic politics attached to it. But regardless of the politics, the public feels that these are movements, these are fights that have been long ongoing, and they will not rest at least until the three most important sites of Ayodhya, Kashi and Mathura are decided. With camera person Chintan Devpuri and Vikas Rawat in Mathura, Shivani Gupta, CNN News 18.